A wonderful morning, evening, and afternoon to all my dear students. I hope your study is going well. Today we are taking chapter 5 on the face of it. This is from your Vistas book, and the writer of this chapter is Suzanne Hill. First of all, introduction of the chapter. On the face of it is a one-act play by Suzanne Hill that explores the struggles of disabled individual in society. The story revolves around two main characters. There are two main characters in this chapter. Derry, he is a 14 years old boy with a burnt face, and the other character is Mr. Lamb, an old man with a tin or artificial leg. It highlights prejudices, loneliness, self-acceptance, and human connections. The theme of the chapter is physical versus inner beauty. Society judges people by their appearance rather than their personality. की जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, वो लोगों को appearance के बेस पर जज करती है एंड उनकी पर्सनैलिटी और इनर ब्यूटी के बेस पर नहीं करती है. लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन. In this chapter, both Derry and Mr. Lamb suffer from loneliness due to their disabilities, क्योंकि दोनों ही डिसेबल हैं और इम्परफेक्ट हैं, तो इसीलिए वो लोनलीनेस फील करते हैं, सोशल आइसोलेशन फील करते हैं. ओवरकमिंग सेल्फ पिटी. मिस्टर लैम्ब टीचेस डेरी दैट लाइफ इज़ अबाउट हाउ यू परसीव योर सेल्फ, कि ज़िंदगी लाइफ उस बारे में है कि आप अपने आप को किस तरह से लेते हो, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो. नॉट हाउ अदर्स सी यू, कि ना कि उस बारे में कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. देन नेक्स्ट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. द प्ले एम्फेसाइजेस पॉजिटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एम्ब्रेसिंग लाइफ, कि पॉजिटिविटी के बारे में है ये प्ले, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में एंड एम्ब्रेसिंग लाइफ, हाउ मच यू लाइक योर लाइफ. ब्रेकिंग सोशल स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में एक नैरो थिंकिंग बना लेना, एक अलग ही कंसेप्ट बना लेना, नैरो कंसेप्ट बना लेना, दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्टीरियोटाइप. एंड इट चैलेंजेस द वे डिसेबल्ड पीपल आर ट्रीटेड इन सोसाइटी, कि लोग डिसेबल्ड पीपल को एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ये उस चीज़ को ब्रेक करता है, उस स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करता है. सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर. फिजिकल डिफॉर्मिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सनस वर्थ, कि फिज़िकली अगर कोई डिफॉर्म है या डिसेबल है वो उसकी पर्सन की वैल्यू को कम नहीं कर देता. ट्रू ब्यूटी लाइज इन वंस थॉट, कॉन्फिडेंस एंड हाउ दे परसीव लाइफ, की जो ट्रू ब्यूटी होती है वो इंसान के थॉट्स में होती है, कॉन्फिडेंस में होती है, और वो लाइफ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ में होती है. काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस कैन हेल्प ओवरकम आइसोलेशन एंड सोशल रिजेक्शन. तो आइसोलेशन और सोशल रिजेक्शन से कैसे हम बाहर आ सकते हैं? काइंडनेस और एक्सेप्टेंस से. Now, message of the chapter, that disabilities do not make a person inferior. Society must stop judging people based on appearances. A positive attitude can change life regardless of hardships. Self-acceptance is key to happiness. These are some messages from this story, this play. Keywords. There are some keywords for useful answer writing. Derry, he is a 14-year-old boy. Mr. Lamb, an old man with a tin leg. Fear of social rejection. Self-pity versus self-confidence. Loneliness and isolation. Life lessons and new perspectives. Symbolism of the open garden. Metaphor of weeds and flowers. Tragic yet hopeful ending. These are some expressions that you need to write good answers. Next, detailed point-wise summary of the chapter. Introduction to Derry. Derry is a 14 years old boy with a burnt face due to an acid accident. He is a little bit bitter, shy and withdrawn because people avoid him. क्योंकि लोग उसे avoid करते हैं तो उसके मन में एक bitterness है लोगों के बारे में. वो shy है, बातें नहीं करता, खुल के किसी से mix-up नहीं होता, withdrawn है, अपने आप को लोगों से अलग रखता है. Feels that no one loves him and everyone is disgusted by his face. उसे लगता है कि कोई भी उसे लव नहीं करता और हर कोई उसके burnt face से disgusting feel करता है. Sneaks into Mr. Lamb's garden thinking it's empty. वो अचानक से मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आ जाता है क्योंकि उसने सोचा कि वो गार्डन एम्प्टी है. Introduction to Mr. Lamb. An old man with a tin leg and he was injured in a war explosion. वॉर एक्सप्लोजन में इनकी एक लेग चली जाती है तो वो टिन की लेग यूज़ करते हैं. लिव्स अलोन इन अ हाउस विद अ बिग गार्डन.
अकेले रहते हैं वो, एक बड़ा गार्डन है, हाउस है उनके पास. कीप्स हिज डोर्स ओपन टू एवरीवन एंड लव्स कंपनी. फिलोसॉफिकल एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ. उनका नज़रिया लाइफ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है एंड फिलोसॉफिकल है. द फर्स्ट कन्वर्जेशन बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लैम्ब. फियर वर्सेस एक्सेप्टेंस. यहाँ फियर किसको शो कर रहा है, डेरी को, और एक्सेप्टेंस किसको शो कर रहा है, मिस्टर लैम्ब को. डेरी इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड एंड फील्स ही इज़ एन आउटकास्ट. उसे हमेशा ये फियर लगा रहता है कि लोग मुझे जज कर रहे होंगे, लोग मुझे लाइक नहीं करेंगे, लोग मुझे अवॉइड करेंगे. ये हमेशा फियर में रहता है. मिस्टर लैम्ब वेलकम्स हिम काइंडली. जबकि मिस्टर लैम्ब उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे बहुत खुश होकर वेलकम करते हैं. एंड डज नॉट रिएक्ट टू हिज बर्न फेस. और उसके बर्न फेस पर रिएक्ट भी नहीं करते. लैम्ब्स लेसन. लैम्ब उसे क्या समझाते हैं, लाइफ इज़ अबाउट परसेप्शन नॉट अपीयरेंस. कि जो लाइफ होती है हमारी, वो अपीयरेंस के बारे में नहीं होती, बल्कि कैसे हम अपनी लाइफ को फील करते हैं उस बारे में होती है. हम परसेप्शन कैसा बना रखा है, हमने अपना एटीट्यूड कैसा बना रखा है, उसके बारे में है लाइफ. ही कंपेयर्स पीपल टू फ्लावर्स एंड वीड्स. वो लोगों को फ्लावर्स और वीड्स से कंपेयर करते हैं कि दोनों की ही वैल्यू होती है नेचर के लिए. फ्लावर्स की जितनी वैल्यू है उतनी ही वीड्स की भी होती है. Derry's insecurities and society's cruelty. Derry reveals how people mock him. कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं. Say he is ugly and call his face a terrible thing. He remembers when a woman said only a mother could love him. Mr. Lamb tells him to stop caring about others' opinions and enjoy life. Mr. Lamb उसको समझाते हैं कि don't care about others' opinions. कि किसी और के ओपिनियन को आप केयर मत करो and enjoy your life. मिस्टर लैम्ब्स ऑन स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव आउटलुक. कि मिस्टर लैम्ब भी डिसेबल हैं, तो उनके लाइफ की भी खुद की स्ट्रगल्स हैं, लेकिन फिर भी उनका एक पॉजिटिव आउटलुक है लाइफ के बारे में. हिज टिन लेग नेवर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम लिविंग फुली. अनलाइक डेरी, ही एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ एंड डजंट लेट लोनलीनेस अफेक्ट हिम. ही enjoys nature, reads books and talks to everyone. Tells Derry that isolation is a choice. People accept you if you let them. वो डेरी को समझाते हैं कि आइसोलेशन एक चॉइस है. अगर तुम अकेला रहना चाहते हो तो तुम अकेले ही रहोगे. पीपल एक्सेप्ट यू इफ़ यू लेट देम. लोग तुम्हें तभी एक्सेप्ट करेंगे जब तुम उन्हें अपने आप को एक्सेप्ट करने दोगे. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरी. अब डेरी में मिस्टर लैम्ब की फ्रेंडशिप से, मिस्टर लैम्ब के समझाने से काफ़ी कुछ चेंज आता है. अ न्यू पर्सपेक्टिव ही गेट्स हियर. डेरी स्टार्ट्स ओपनिंग अप एंड सीज लाइफ डिफरेंटली. वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी बातें करना स्टार्ट कर देता है. पहले तो वो बिल्कुल रिज़र्व रहता है, अपने आप को बिल्कुल अलग रखता है, लेकिन अब वो मिस्टर लैम्ब से बात करने के बाद थोड़ा ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और लाइफ को अलग तरीके से देखने लगता है. मिस्टर लैम्ब्स वर्ड्स मोटिवेट हिम टू लिव विदाउट फियर. फॉर द फर्स्ट टाइम डेरी फील्स कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ. तो मिस्टर लैम्ब से बात करने के बाद पहली बार डेरी कॉन्फिडेंट फील करता है अपने बारे में. ही डिसाइड्स टू गो होम एंड प्रूव हिज वर्थ टू हिज मदर. वो अपने घर जाता है और अपनी मदर को अपनी वैल्यू बताता है, प्रूव करता है कि आई एम अ वैल्यूएबल पर्सन इन दिस सोसाइटी, है ना, आई एम नॉट लेस देन एनी वन एल्स. द ट्रेजिक एंडिंग. अब इस प्ले की एंडिंग कैसे होती है, मिस्टर लैम्ब्स डेथ. डेरी रिटर्न्स टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन एक्साइटेड टू टॉक मोर. डेरी वापस से आता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में. उसे बताना चाहता है कि वो अब उनके साथ ही रहेगा. बहुत एक्साइटेड है वो और बातें करने के लिए. एंड व्हेन ही एंटर्स ही फाइंड्स दैट मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन द ग्राउंड डेड, पॉसिबली फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द लैडर. वो अपने ट्रीज़ पर चढ़े हुए थे लैडर की हेल्प से, तो पॉसिबली कि वो लैडर से गिर गए होंगे, तो इसीलिए वो डेड हो गए. अ हार्ट ब्रेकिंग येट सिम्बॉलिक मोमेंट. तो वो ये जो लास्ट वाला मोमेंट होता है एक हार्ट ब्रेकिंग होता है, लेकिन ये सिम्बॉलिक भी है. डेरी रियलाइजेज ही हैज़ लॉस्ट हिज ओनली ट्रू फ्रेंड. डेरी यहाँ पे रियलाइज़ करता है कि उसका एक ही तो फ्रेंड बना था और उसने उसे भी खो दिया है. कंक्लूजन. द ट्रू मीनिंग ऑफ द प्ले क्या है. द प्ले टीचेस दैट वंस परसेप्शन ऑफ लाइफ मैटर्स मोर देन फिजिकल अपीयरेंस. कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती जितना कि हमारा परसेप्शन ऑफ लाइफ, हम लाइफ को कैसे लेते हैं, वो मैटर करता है. मिस्टर लैम्ब बिकम्स डेरीज गाइड टीचिंग हिम सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस. मिस्टर लैम्ब उसके लिए एक मोटिवेटर थे, एक गाइड थे, जिन्होंने उसे सिखाया है कि सेल्फ वर्थ क्या होती है, कॉन्फिडेंस क्या होता है. द ट्रेजिक एंडिंग सिम्बलाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग लाइफ बिफोर इट्स टू लेट. और इस प्ले की जो ट्रेजिक एंडिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है. उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो सिम्बलाइज़ करती है कि लाइफ को हमें
अपना लेना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट, बहुत ज़्यादा देर हो जाए उससे पहले हमें लाइफ को अपना लेना चाहिए. डेरीज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द रियल विक्ट्री ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी की रियल विक्ट्री क्या है कि डेरी हैज़ बीन चेंज्ड नाउ. कैरेक्टर स्केचेस देखिए. डेरी द 14-year-old प्रोटैगोनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर है इस प्ले का वो डेरी है. ही इज़ फिजिकली डीफॉर्म्ड. डिसेबल्ड नहीं बोला यहाँ, डीफॉर्म बोला है. डीफॉर्म्ड मीन्स ही इज़ नॉट परफेक्ट बिकॉज हिज फेस इज़ बर्न्ड ड्यू टू एसिड लीडिंग टू सोशल रिजेक्शन. सेल्फ कॉन्शियस है वो और पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है वो. अवॉइड्स पीपल, फियर जजमेंट, लोगों को अवॉइड करता है, जजमेंट से डरता है कि लोग उसे जज करेंगे. ही इज़ बिटर एंड एंग्री. ही बिलीव्स पीपल ओनली सी हिज स्कैर्स नॉट हिज पर्सनैलिटी. तो वो हमेशा बिटर रहता है, एंग्री रहता है लोगों से. ट्रांसफॉर्म्स इंटू अ कॉन्फिडेंट बॉय एंड ही हैज़ बीन चेंज्ड इंटू अ कॉन्फिडेंट बॉय बाय मिस्टर लैम्ब. मिस्टर लैम्ब चेंजेस हिज पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ. सिंबल ऑफ स्ट्रगल एंड ग्रोथ. तो ये जो कैरेक्टर है डेरी, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, किसका सिंबल है, स्ट्रगल एंड ग्रोथ का. इट रिप्रेजेंट्स द जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि पहले वो सेल्फ एक्सेप्टेंस उसके अंदर नहीं थी, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन उसका हुआ एंड देन ही हैज़ नाउ सेल्फ एक्सेप्टेंस. देन मिस्टर लैम्ब द वाइज एंड ऑप्टिमिस्टिक ओल्ड मैन. फिजिकली डिसेबल्ड हैं ये भी इसे डिसेबल्ड बोला है और डेरी को डीफॉर्म्ड बोला है. ये थोड़ा ध्यान रखेंगे. डीफॉर्म्ड मीन्स ही इज़ नॉट डिसेबल्ड बट डीफॉर्म्ड. And Mr. Lamb is physically disabled. He has lost one leg in war but never complains. Lonely yet cheerful. ये lonely है, अकेले हैं लेकिन फिर भी cheerful है. Lives alone but keeps his door open for all. Wise है, philosophical है, and he believes beauty is in the mind not in the body. Encourages Derry, becomes a mentor and father figure to him. एनकरेज करते हैं डेरी को और उसके लिए एक फादर फिगर की तरह वर्क करते हैं. एंड ही इज़ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी. जो डेरी था वो किसका सिंबल था, स्ट्रगल एंड ग्रोथ, कि उसने काफ़ी स्ट्रगल किया एंड देन नाउ ही हैड ग्रोथ. देन जो मिस्टर लैम्ब हैं वो सिंबल हैं स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी के. एंड ही टीचेस दैट लाइफ इज़ अबाउट एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन, कि अगर कोई इम्परफेक्ट है तो उसे भी हम अपनाएं, एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें. Important symbolism in the play. The garden किसको symbolize कर रहा है, garden represents freedom, acceptance and openness to life. Then weeds and flowers symbolizes metaphor for all people having their unique value. कि weeds और flowers normal people हैं और weeds disabled और deformed people हैं, कि दोनों को ही nature same way में treat करती है. Mr. Lamb's open door is a symbol of acceptance and hope. Tin leg and burned face shows how society treats physical differences. So this is your chapter. I hope you will find these notes beneficial for you. All the best.